Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Hope you will be fine. In last class, we solved four questions, and fifth question I give you as a homework. So, student of exercise 17A. So, dear student, today we will start from the question number 6. So, let's see. Uh, Question number 6. Open page number 498, and you can see इन योर बुक पेन एक्सरसाइज 17A जो है आपकी उसका क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक पर पेज नंबर 498 पर मौजूद है. Okay, class, in which in question number 6 we have data is given in group form. Group data we have given. ठीक है, हमें group data given है जिसके अंदर I am reading the question. Listen to me very carefully, dear students. The number of goals scored per match by a team during a Saucer League season was recorded. Number of goals scored per match, 0. Number of matches, 6. Goals, 1, 2, 3, 4, 5. And the number of matches were 6, 8, 5, 6, 2, 2, 1. So you will have to find out the total number of matches played, the total number of goals scored, the mean number of goals scored per match by the team. So class, you have given data in group form. Okay, आपको group data given है. So let's start to solve question number 6. Solution, part 1. Question number 6 consists of 3 parts. So first part we are starting. Okay. Total number of matches played. The total number of matches played. As usual, we will add the given data terms. Total number of matches played, यानी कि कितने matches खेले गए थे. Matches played. Wait a minute. Let me reset. Okay. Yes, dear student. Total number of matches played. Yes. Is equal to, yes, we have given total number of matches 6 plus 8 plus 5 plus 6 plus 2 plus 2 plus 1. Total number of matches here we have, and when we sum up the values it becomes 30. जब हमने इसका sum करेंगे तो इसका आंसर है 30. So this is the answer of part 1. Now move on next part, which is total number of goals scored. अब total number of goal कितने किए थे इन्होंने वो हमें देखने हैं. ये तो स्टेप ये टोटल नंबर ऑफ यहाँ तक सेम लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे गोल्स स्कोर्ड. सॉसर मैच, इन सॉसर मैच कहते हैं क्लास फुटबॉल के मैच को. Scored. Okay, we have given number of goals and we sum up the values. 0 plus, oh no, not only sum, as usual class you can see that in first, in number of matches, 6 matches, number of goal were 0. Then plus in 8 matches, number of goals were 1. प्लस मतलब इन्होंने कितने गोल स्कोर किए थे, 6 में 0 गोल किया, 8 मैचेस में 1. In 5 matches they scored 2
goals. Yes. In 6 matches, they scored 3. Oh, here we will put the plus sign. यहाँ पे plus का sign आएगा. 6 multiplied by 3 plus in 2 matches 2 multiplied by 4 plus 2 multiplied by 5 plus 1 multiplied by 6. Okay, student. So now this is the time to simplify the terms. 6 zeros are 0. 8 ones are 8. When we have a data given in group form, so in that way we will solve the problem required answer. 5 twos are 10. It's not a 5 twos are 10 plus 6 threes are 18. 2 fours are 8. 2 fives are 10 and 6 ones are 6 is equal to total number of goals scored. Okay, this is the time to calculate the values. 8 plus 10, 18, then 18, then 8 plus 16, 10 plus 6, 16, it becomes 60. Okay. In third part, they are asking from us the mean number of goals scored per match by the team. अब third part में आपको mean find out करना है. As I told you in last class, mean formula is sum upon count. So dear student, here is the answer of our given question is yes, mean upon count. We have given mean. अब हमें find out करना है. Yes, is equal to number of goals scored upon total number of matches played. 60 upon 30. ठीक है, अब हमने इसको इससे डिवाइड करवा दिया. आंसर विल बी 2. ये हमारा आंसर आ गया. नहीं, ठीक है. We have solved our question number 6. Now this is the time to solve question number 7. अब हम question number 7 की तरफ आएंगे. Question number 7 is also given in group data form. Okay. Question number 7. Class, I am reading and listen to me very carefully. Okay, students. Okay. Just a second. Yes, student. So let me start from here. Question number 7. Solution. First of all, read the question where I am reading the question. The number of days the student in a class were absent from school in a team was recorded. Find the mean number of the days of absence. Number of days absence. In 0 day, number of students were 23. In 1 day, 4. On second day, 5 students, and number of days is absent 3. Number of students were 2. Number of days absent 3. Number of students were 2. Then 4, 2, 5, 1, 6. In 6 days, number of students were 2. In 9 days, number of students were 1. So student, now this is the time to solve the question. Mean we will find out, but here find the mean number of days. Very easy. When we have a data given in group data group form, जब हमें डेटा अरेंज और ग्रुप फॉर्म में मिलता है तब हम उसके लिए ये फॉर्मूला बनाते हैं, जो हम ऊपर भी यूज किया था लेकिन वहां पे मैंने मेंशन नहीं किया. दिस इज द ग्रुप डाटा. Okay, so here how to solve. In 0 number of student in 0 day, number of student 0 day पे
इतने इससे मल्टीप्लाई होंगे। जाहिर सी बात है जब 0 डे था तो स्टूडेंट जितने भी हों 0 हो जाएंगे। ओ सॉरी, प्लस 0, वेट अ मिनट, लेट मी क्लियर, यस 0, then plus number of day in one day, student were 4, plus in second day number of student were 5. So number of students second day we will multiply with 5, plus number of 3 day number 3 student were 2. Third day पे student 2 student were, okay. Number of in 4 day 4 students were 2. 2 students were absent, plus is this, yes, and then 3 to the 6, wait a minute, 0, 23, 1, 4, 5, 2, 2, 3, wait a minute student, we will start to solve again. थोड़ी सी मैंने आगे पीछे सीक्वेंस कर दिए तो ये आपको प्रॉब्लम कर देगी। लेट मी स्टार्ट, क्लियर द स्पेस, हम दोबारा से करेंगे। ठीक था लेकिन प्रॉब्लम होता फिर। number of student, then number of day, plus number of student, then number of the day, plus number of student, two multiplied by 3, plus 2 multiplied by 4, plus 1 multiplied by 5, plus 2 multiplied by 6, plus 1 multiplied by 9. Yes student, अपॉन में हम लिखेंगे जो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट अपॉन में हम वो लिखेंगे क्लास जब हमें गिवन डाटा में से जो चीज़ पूछी होगी। फाइंड द नंबर ऑफ डेज एब्सेंस, ओके, नहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछेंगे ना, वो डेज तो हमें मेंशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम ये अपॉन में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे 23, प्लस इससे हमें डे का मीन पता चल जाएगा 4, 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1. So students, 23 zeros are 23, 23 zeros are 0, sorry, plus 4 ones are, it's a 0. Okay, let me clear the space again, and then 23 zeros are 0, 4 ones are 4, plus 5 twos are 10, plus 2 threes are 6, plus 2 fours are 8, plus 5 ones are 5, plus 2 6 are 12, and plus 9 ones are 9. Sum up the values. Okay, अब हम इसको सम करेंगे। Yes, 23 plus 4 plus 5 plus 4 plus 4, 1 to 1 become 4, 40. जी, अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं।
4 plus 10 plus 6 plus 8 plus 5 plus 12 plus 9, 54 upon 40. Yes. So our mean is, अब हमारा जो mean है वो क्या आया है? Yes, student. Our required mean is 1.35. 1.35 days. This is our mean. So we have done our question number 7 also. Now, question number 8 is given in a dot diagram form. क्लास क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो हमें डॉटेड डायग्राम में दिया हुआ है. डॉट डायग्राम क्या होती है? लेट मी ड्रॉ फ्रॉम हियर. ड्रॉ हेयर. मैं अब आपको ना ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि डॉट डायग्राम किस तरह की होती है. ओके, लेट मी ड्रॉ द बार. अब हम इसके बार ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे 6, ये आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन है. 7 क्वेश्चन कॉपी कर रही हूँ मैं क्लास. यहाँ पे 8, क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज क्वेश्चन 8. 9, 10, 11 and 12. That's it. ये हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है. ओके, अब जो हमें इस पे डॉट्स दिए हुए हैं वो हमें दिए हुए हैं ब्लू कलर के ना, स्काई ब्लू. यस. 6 पर जो हमें डॉट्स 1 एंड देन 7 पर 2 दिए हुए हैं. Then question on 8, on 9, 1, 3, 4. Yes, 4 dots we have given. Okay, on question number 10, on 10 dots we have given. 3 dots. On question number, wait a minute, थोड़ा सा नहीं टेढ़ा हो गया था तो हम इसको सही करते हैं. Yes. Okay, on 11 point we have given 1 dot. Okay, so dear student, ये हमारी डायग्राम, इसको कहते हैं डॉट डायग्राम. ठीक है. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. अब आपके पास देखें डॉट डायग्राम है. अब आपको इसके थ्रू क्या करना है? डॉट डायग्राम मीन मालूम करना है. अब आपने कैसे करना है? एज यूजुअल फॉर्मूला इज सेम. क्वेश्चन नंबर 8 mean, capital M is used to represent the mean. M is equal to summation fx upon f. Summation f. Summation means sum. Okay. 1 dot is on 6 point plus 2 dots on 7th range. 1 dot is on 8 plus, बहुत आसान होता है ये, आपको गिवन होगी
आपने डेटा को अरेंज करना है। while plus 4 dots is on 9 क्लास। मैं आपको डेटा अरेंज करके दे रही हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं दो स्टेप्स वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। एंड 3 dots is on 10, 1 dot is on 11, plus 1 dot is on 12. Yes, student. Upon, okay, how many dots we have given? 1. Number of dots we will write here. 1, 2, plus 1, plus 4, plus 3, plus 1, plus 1. Okay, student, here we have given the values. Okay, now here, yes, अब जो अगले पार्ट्स स्टेप्स हैं 2 वो आप खुद करेंगे। यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। दिस इज पार्ट ए। नाउ पार्ट बी। अब पार्ट बी का भी मैं डेटा आपको अरेंज करके दूंगी और जो कैलकुलेशन वर्क है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। पार्ट बी इज स्ट्रीम लीफ डायग्राम। स्ट्रीम लीफ डायग्राम कैसी होती है आप देखिएगा। स्ट्रीम लीफ डायग्राम हम इसमें सॉल्व करेंगे और उसके अंदर हमें कुछ इस तरह से डेटा गिवन होगा। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई भी है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई भी है। जी ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेम यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव गिवन लीफ। इसको कहते हैं स्टेम लीफ डायग्राम। ओके 7, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 and the data is given here 2 gap 3 gap 5 and 5. Okay, I'm writing a question over here. And then on 8 stem 2 7 8 8 9 9 and 9. On 9 stem 1 3 7 7. On 10th, अब 10th पे हमें क्या गिवन है स्टूडेंट? 10 पे हमें गिवन है 2 7 8 और नीचे ना की दी हुई है। की का मतलब होता है स्टूडेंट 7 3। ओके, देखते हैं कैसे की का यूज होता है नहीं होता। की जो है वो यूज हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे आगे? यस स्टूडेंट, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ओके अच्छा, की का मतलब है कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जी स्टूडेंट, यानी कि मल्टीप्लाई प्लस। ओके, अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। अब वैल्यूज बहुत सारी हैं और हमें इनका मीन निकालना है। मतलब ये सॉल्व इस तरह होगा, देखें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यानी कि 7.2 मतलब 7 2 प्लस 7.3 प्लस 7.5 प्लस 7.5 देन प्लस 8.2 प्लस 8.7 8.8 एंड सो ऑन। डॉट मीन्स मल्टीप्लाइंग, ठीक है। और ये आपको खुद सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? लेट्स सपोज 7 डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन 2
plus, it's not a point, it's a dot. Dot means multiplication. Dot 7.3 plus 7.5 and so on. अब आपने इनको क्लास जितने भी हैं क्लास, इनको आपने इस तरह से रिलेशन में लिखना है, यानी कि 8.2 प्लस 8.7 प्लस 8.8 एंड सो ऑन, 9.1 प्लस 9.3 एंड सो ऑन, 10.2 प्लस 10.7 प्लस 10.8, ये सबको प्लस में इस तरह से लिखना है। और इनके अपॉन में जो नंबर आएंगे वो आएंगे यहाँ पे स्टूडेंट, ये कितने हैं, ये जो इनके अपॉन में आएंगे वो आएंगे यस 4743 जी स्टूडेंट। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। अच्छा, तो ये पार्ट जो है ना आपने ये सॉल्व करना है और ये आपका होमवर्क मैं दे रही हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स जी। यस स्टूडेंट, 1 2 3 3 4 8 1 2 3 ओके डन। नाउ इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी। और ये जो डॉट लीफ डायग्राम है ये आपको पीछे भी गिवन है, तो आप इसके हेल्प से कर सकते हैं स्टेम लीफ की। ओके नाउ अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सी में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट सी है, वो हमें बार डायग्राम की फॉर्म में गिवन है। किसकी फॉर्म में गिवन है, बार डायग्राम की। स्टूडेंट बार डायग्राम जो है ना वो हमें कुछ इस तरह से गिवन होगी। एक ना ग्राफ के ऊपर इसको हम प्लॉटिंग करते हैं। अच्छा, अभी वहाँ पर तो थोड़ा सा उन्होंने ओके ओके अब हमें यहाँ पे ना बार गिवन है, हम बार ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ना वैसे टाइम बहुत लग जाएगा। ये आपके एनीवेज क्लास में ना ये क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रही हूँ, इट विल टेक टू मच टाइम। तो हम क्या करेंगे, ओके हम ना डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। आपको बार गिवन है। अब पहला जो बार है वो है पॉइंट नंबर, नीचे उस पर लिखा हुआ है, यहाँ पे रेंज उसकी गिवन है 3, मतलब एज उसकी गिवन है 3 और फ्रीक्वेंसी उसकी गिवन है 3, यानी कि आप इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। आपको मीन गिवन है 3, बार डायग्राम हम आगे भी इसको देखेंगे। 3 मतलब कौन से कहाँ तक जा रहा है वो, यानी कि मैं आपको रफली इस तरह से बता देती हूँ। देखें, ये हमारे पास इस तरह से प्लॉटिंग हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे पहला बार ये गिवन, मैं आपको रफली बता रही हूँ, मैं अभी बहुत क्लियरली नहीं कर रही यहाँ पे। इट इज़ गिवन इन बुक। ये हमारे पास दूसरा बार ग्राफ ये होते हैं कि ये अटैच होते हैं आपस में, इनके तमाम बार कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, और आप इसको कलरफुल सा बहुत खूबसूरत सा भी बना सकते हैं। ये कलरफुल डायग्राम्स होती हैं इस तरह से। तो ये जो पहला वाला है, ये जो बुक में गिवन है डायग्राम, उसके मुताबिक ये 3 पर आया हुआ है, और जो दूसरा वाला है वो आया हुआ है 5 पर एंड सो ऑन। और इसी तरह यहाँ, और मतलब मैंने अभी पूरी कंप्लीटली नहीं बनाई है, यहाँ पे लिखी हुई 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, सेकेंड एक बार का 4 रेंज है, यहाँ पे 5 है, ये 5 पर है, ये 6 पर है, और ये 7 पर है। इस तरह ग्लास, ये एक डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं है, ये आगे भी मतलब मैंने आपको ये एक बताया कि इस तरह से होता है बार ग्राफ। चले, पहला बार 3 और ये 3, ठीक है। वर्टिकली देखिए और हॉरिजॉन्टली देखिए। दिस इज वर्टिकल हाइट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल हाइट, तो ये मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह सेकेंड बार जो है वो वर्टिकल हाइट, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, यानी कि 5 तक पहुंच रहा है वो, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 लाइन पर है, और नीचे से मतलब इसकी जो बेस है वो कितनी, हॉरिजॉन्टल हाइट कितनी है 4 प्लस। ये मैं अरेंज करके दे रही हूँ और सॉल्व आपने करना है। 6
जो बड़ा वाला बार है उससे बड़ा वाला जो है वो नहीं, वो फोर्थ पर है, सॉरी, हाँ जी, फोर्थ पर है, फोर्थ पर है, और वैसे उसका जो नंबर है वो क्या है, 6 है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ओ वेट अ मिनट क्लास, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, दोबारा करते हैं इसको। पहला वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 7। जी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो नंबर है ना 3, 4, 5, 6, 7, ये है इसकी ये वाली हाइट हॉरिजॉन्टल, और ये जो है ना 3, 4, 3, 5, ये है इसकी वर्टिकल हाइट। ओके, अब आपको अपॉन में क्या लिखना होगा, आपने लिखने हैं 3, ये वर्टिकल हाइट लिखनी है, यानी कि पहला बार कौन सी रेंज पर था, 3 पर, दूसरा बार की क्या थी रेंज, 5, वर्टिकल हाइट यानी कि यहाँ के ये वाले वर्टिकल पॉइंट्स लिखने हैं आपको इसके, प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 प्लस इट्स 6 प्लस 2। तो स्टूडेंट इस तरह आपने ये वाला जो काम है कंप्लीट करना है। ओके, 3, 5, 6, 4 एंड देन 2। क्लास ये 4 है, ये 3 नहीं है, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, इट्स अ 4। जी, अब आप आगे सिंप्लीफाई तो उसको कर सकते हैं, ये भी आपका होमवर्क है, मैंने आपको 2 पार्ट होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये जो है एक्सरसाइज 17A कंप्लीट हो गई है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक 17B जो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अभी हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है मीडियन। स्टूडेंट मीडियन हम पढ़ेंगे। मीडियन होता क्या है, तो फाइंड द मीडियन, Alex places the numbers in various order and find the middle number. You have given the dotted diagram. ये आपको गिवन है यहाँ पर, और ये 50, 55, 60, 65, ये देखिए। अब आपको मीडियन कैसे निकालना है, पहले हम यहाँ पे देखते हैं हाउ टू फाइंड द मीडियन। मीडियन आपको किस तरह निकालना होता है, इट्स द मिडल ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ द नंबर्स। जो मीडियन होता है इसका मतलब होता है मीडियन इज द मिडिल ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ द नंबर। जो नंबर लिस्ट आपको गिवन है आपको उसका जो मिड नंबर होता है वो मीडियन होता है, ठीक है, मीडियन कहलाता है, मिडिल नंबर। हाउ टू फाइंड द मीडियन वैल्यू, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, टू फाइंड द मीडियन प्लेस द नंबर्स इन वैल्यू ऑर्डर एंड फाइंड द मिडल। क्लास अब आप देखिए, सबसे पहले जो गिवन डाटा है ना, ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। आपने ये जो डाटा आपको गिवन होगा उसको आपने पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है छोटे नंबर से बड़ा। अब इसके मिड में देखिए क्या है, 5, सो दिस इज द मीडियन, ठीक है। अब ये तो आसान था कि इसके मिड में 5 था। इस तरह आप अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए। लेट्स सपोज वी हैव गिवन डाटा इन मिक्स फॉर्म। अब देखिए ये मिक्स फॉर्म में और अनग्रुप है, तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर में लिखने का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए छोटे से बड़े की तरफ ये अरेंज हुआ है। अब यहाँ के मिड में देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 क्लास
wait just a second, let me. Okay student, so now we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। 15 का मिड में हम क्या करेंगे, 7 हम इस तरफ लेंगे, 7 हम इस तरफ लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मिड में हमारे 8 आ गया, 8 नंबर जो है हमारा मिड है, यानी कि 23 हमारा मीडियन होगा। सिंपल। अब क्लास यहाँ पर देखिए, 2 numbers in the middle but with an even amount the number things are slightly different। क्लास ये वो जो आसान से तरीका था ना, वो बहुत आसान था। वो जब था कि व्हेन वी हैव अ डाटा इन ऑड नंबर, जब हमारे पास नंबर ऑफ डाटा ऑड होंगे, यानी कि जैसे 15 टर्म्स, 60 टर्म्स, 5 टर्म्स, तो 2 इस तरफ ले ली, 2 इस तरफ ले ली, जो मिड वैल्यू है वो 5वीं, ठीक है। लेकिन if we have a number of data in odd even form, अगर number of data even form में हो तो हम कैसे find out करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, पहले ये आपको डाटा गिवन है, ये इवन है, जैसे कि कितने 14 है, 14 एक इवन नंबर होता है, इसमें इवन और ऑड का देखना होता है। इवन नंबर अगर हमारे पास गिवन है तो हम क्या करते हैं, पेयर लेते हैं, जैसे कि मिड में कितने, मतलब जाहिर सी बात है, अब हमें क्या पता चलेगा हम इस तरफ कितने इस तरफ कितने, तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये 14 है, तो हमने यहाँ पे कितने किए, 1 2 3 4 5 6 इस तरफ, 6 इस तरफ, मिड में जो 2 वैल्यूज है इनको अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। बहुत आसान मेथड है ये। डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास जो 22 आया वो आपका मीडियन है। इस तरह करना है। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। अगर डाटा हमारे पास इवन है तो आपने क्या करना है, उसकी मिड की 2 वैल्यूज पिक करनी है, इक्वल अमाउंट में, एक आधी वैल्यू, इक्वल नंबर्स ऑफ टर्म यहाँ पे रखनी है, इक्वल नंबर ऑफ टर्म यहाँ रखनी है, जो मिड की 2 वैल्यूज है वो आप लेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ओके सो स्टूडेंट, अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं, सॉर्ट द लिस्ट डायग्राम। अब हम इसको चेक करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास 3 है। ओके हमने ये लिया, 16 18 चेक। ओके नहीं ये वर्क नहीं कर रहा, 1 sort the list, drag them, 3 1 plus 36 try again help। चलिए हम इसकी हेल्प करते हैं। ओके 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 चलिए अब हम देखते हैं क्लास, इसका मीडियन हमें लेना है। मीडियन हम कैसे लेंगे, इनके मिड में कितनी है, देखें ये इवन नंबर है, मिड वाली वैल्यू ये है 39 प्लस 96, हमने इनको ऐड करना है कि क्या ये हमारा आंसर सही है। 39 प्लस 96 is equal to 135 divided by 2, answer is 67.5। क्लास ये तो हमारा काम यहाँ पे इन्होंने कहा कि ओप्स ट्राई अगेन, चलें इसको हम रहने देते हैं, हम आगे चलते हैं। वेयर इज द मिडिल, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। वेयर इज द मिडिल, अ क्विक वे टू फाइंड द मिडिल, काउंट हाउ मेनी नंबर्स काउंट। अच्छा अब ये दूसरा मेथड उन्होंने बताया, देयर आर 45 नंबर्स, 45 प्लस 1। अच्छा उन्होंने कहा है कि लेट सपोज अगर आपके पास 45 नंबर्स हैं, अब उन्होंने कहा कि क्या करना है, 1 प्लस करना है, वो 46 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये है 23, तो ये मीडियन हो गया। अब 66 है तो 1 प्लस करेंगे, 67 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, 33.5। अब देखें यहाँ पे पॉइंट में आंसर आया, तो हम उसको पता है कैसे लेंगे, 33.5 किसके आगे उसके आगे और पीछे वाला नंबर, मतलब 33 से पहले क्या आता है, 33.5 है तो उससे पहले क्या आएगा 33 और उसके बाद क्या आएगा 34, तो उसके मिड में है ये वैल्यू, तो वो दोनों लेंगे, तो वो दोनों उसके मीडियन है। आई होप के क्लास ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और वो जब लेकिन इससे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए जो है एक हो सकता है टेस्ट हो जाए आप लोगों का, तो प्लीज़ अपनी टेस्ट की तैयारी कीजिएगा।
इट्स एंड ऑफ द क्लास, और जो होमवर्क आपको दिया है वो कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।